Hi guys, so we meet on afternoon today. The first question for today. Okay, so it goes okay for me as of now. So far, so good. And the first question, traditional. I mean, our examiner bodies love asking about AIDS. That's again something high yield for INISAT and NEET PG. Low CD4 count will always be given, and then they are gonna describe like this is more of, I would say, a repeat question, very easy for you to identify. Hi, Subhashini. Hi, Prateek. 36-year-old patient, CD4 count of 74, pretty low, adenophageal retrosternal chest pain. And then you can pick up that characteristic crateriform lesion in the middle esophagus. Then there's an endoscopic biopsy that is given. So obviously the answer is not Candida esophagitis, because they would not have done a biopsy for a Candida, and you would have been able to see the hyphae if that would have been present. So let's look at your skills here, diagnostic ones. It can be cytomegalovirus, herpes simplex, traditional ones, because the CD4 count is low. So there's a high probability that these opportunistic infections could be present in a patient. I'll wait for your comments for another 5 seconds, and then we can go ahead with, you want me to zoom into the slide? Okay, I think you would have anyway, you would have anyway check this out in the app also. So yes, guys, hit the comment button. Whatever you feel is right. Some comments have started coming. I'll just not like to disclose the answer immediately, though it's pretty straightforward one. You see, when you read the word crater, the impression that comes is it should be an opportunistic infection that is present. But when you look at the biopsy finding, it is totally different. What you can notice here is very, very characteristic keratin pearls that are coming up. So there's no owl-eye appearance that is present that I was searching for. In fact, what I initially thought was this could be an owl-eye appearance, but this is actually keratin pearls that are present. And the moment I pick up keratin pearls, the answer will change dramatically. And this is not an opportunistic infection. This is going to be squamous cell cancer. Squamous cell cancer can start initially as a ulcer, and then from the ulcer part it can become converted into a ulcer with rolled out everted margins, and then later on it can go ahead and result in development of even a fungating growth, so that fungating coliform growth को बनने में टाइम लगता है. But what you had to do in this particular question was कि आपको एक तो ये देखना था कि क्या आपको आउलाई अपीयरेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. So in one of the previous year questions, he has given that owl-eye appearance for cytomegalovirus, and another hint would be cytomegalovirus. May he will also say the word serpiginous linear ulcers. So the answer to this question is obviously not option number A, because there is no owl-eye appearance, there is no serpiginous ulcer. It's a crateriform ulcer that is given. And like I got comments as herpes simplex also, guys. This is not herpes simplex esophagitis, because that will cause multiple punched out ulcers. Those are called as volcano ulcers, na? I mean, herpes simplex esophagitis क्यों नहीं है? Because then the question should mention the word volcano ulcers, or it should say the word multiple punched out ulcers. आप question ध्यान से पढ़ो. The buzzword in this question would be, one, there is a single ulcer. It's not multiple ulcers. Na? When it comes to these opportunistic infections, it is multiple ulcers that are present. And what is the location? Middle esophagus. And then there is presence of keratin pearls. The most important thing is that the biopsy finding will be the one that will be deciding the answer. Na? You cannot base your answer on just speculation. What you have to understand for INISET is that they will always give you image, and you have to analyze your answer on the basis of an image. And yes, does a cancer present with an ulcer? Absolutely right. Initial presentation of any cancer would be a crateriform ulcer. Then I said they would be everted margins. I think we have sorted. The answer to question number 1 is option number D. And I think most guys did not manage to get to the correct answer, but that happens. The opening can be rusty also, just like cricket match. The first ball can be sometimes a bouncer or can be a yorker, which can result in errors. So it doesn't matter. You just need to keep the persistence on, and I'll keep on telling you regarding those hints, or like those important aspects which are relevant for the exam. So let's focus on the second question for today. A 42-year-old HIV positive male presents with generalized lymphadenopathy, and then you can see that there is a biopsy of the lymph nodes that is showing foamy macrophages which are PAS positive and are also acid fast. So moment you read acid fast, you know that you are dealing with the mycobacterium, and considering that the CD4 count of the patient is almost like 50 or less, that means that we are not dealing with traditional mycobacterium tuberculosis, but we are dealing with mycobacterium avium intercellular. What are the hints in the question? First is CD4 count less than 50.
The second point to be remembered is foamy macrophages. The third one is that there is a past positivity. Considering all the inputs that are provided, we are now knowing that the person is having opportunistic infection in AIDS at CD4 count less than 50. या तो वो साइटोमेगेलोवायरस होता है, या अगर वो साइटोमेगेलोवायरस नहीं होगा तो देन इट्स गोना बी माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर. और उसने पूछा व्हाट शुड बी स्टार्टेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस इन्फेक्शन. अब एक बार इन्फेक्शन हो गया तो इलाज करेंगे, बट देन उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे, प्रिवेंशन के लिए क्या करा जाएगा. सो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, तो क्लरिथ्रोमाइसिन देते हैं और इथाम्बिटॉल देते हैं. लेकिन अगर सिर्फ प्रिवेंशन पे सवाल आएगा, एज हैज बीन डन इन दिस पर्टिकुलर केस, देन व्हाट वी विल डू इज वी विल बी डूइंग मोनोथेरेपी विद azithromycin for this patient. So macrolides are the main treatment for M, that is Mycobacterium avium complex. This is a atypical mycobacteria, so that is why traditional antitubercular drugs are not being discussed here. The routine treatment for MAI, that is Mycobacterium avium intercellular / MAC, Mycobacterium avium complexes, that we will be giving macrolide, that is clarithromycin with ethambutol, or we will be giving for prevention alone azithromycin. So the correct answer for question number 2 is option number A. And do check out your notes for HIV and AIDS, which is like a super important topic for the INISET exam, which would be forthcoming. That's what you would be giving first. Though I know that you have read about HIV infection from pathology as well. But if you want a comprehensive information regarding patho, microbiology, and then obviously the clinical domain, then listening to 1 hour of HIV infection where I have discussed all the aspects together would definitely turn out to be, I cannot say game changer, but yeah, I mean, when I talk to students who have cleared the exam, they say that when they listen to it, they were able to analyze their questions relatively better. So you will notice that in any set, the questions are going to be little non-traditional ones, like the first one that we discussed, it looks like an don't assume everything is an opportunistic infection. Even cancer ka jo incidence hota hai, that is gonna be higher in HIV positive patients, and that's why the answer to this question is squamous cell cancer, because I can pick up those keratin pearls which are present in this particular case. There is no owl-eye appearance, there is no volcano multiple ulcerations described, it's a single ulcer that is given. And for the second question, the point is CD4 count less than 50, we assume that the answer will be cytomegalovirus, but option में नहीं था ना CMV वाला, तो उसने तो Mycobacterium avium intercellular के बारे में पूछ लिया. But let's move on to the third question for today. This is a farmer. I think this is one of the easiest questions that I can put for you. So everybody listening to the discussion, hit the comments, guys. Farmer with prodromal symptoms of nausea and vomiting for 1 week. And now he is having that low-grade fever, right upper quadrant pain and jaundice for 3 days. The LFT shows deranged bilirubin. I mean, there is obviously icterus present. Serum bilirubin अगर 3 के ऊपर जाता है तो person को icterus का presentation होगा. There is a cytopathic effect. Hepatocytes are getting destroyed. जो hepatocytes का cytoplasm होता है उसमें SGPT present होगा. तो when hepatocytes will get destroyed, it's gonna contribute to rise of SGPT in the patient. And then the question says, what is the most likely diagnosis for this particular case? Now, in India, if somebody is having this kind of a presentation, whether he's a farmer or whether he lives in a urban slum, it really does not matter. Or even if in a high-rise building like where you and me might be staying, or maybe staying in a hostel, there is a high risk of fecal contamination which is present. So the older MCQs were having, you see, why the answer to this patient cannot be leptospirosis is because leptospirosis में हमेशा high grade fever होता है. Then there is always mention of very severe cough pain. So the old MCQ of INISET was always having that cough pain present. There was conjunctival suffusion that was described in a question, and it was high-grade fever that was present. But in this question, there is no mention of any cough pain. There is no conjunctival suffusion that is described. Rather, what is present is the right upper quadrant pain. That means कि liver का inflammation हो सकता है, और इंडिया में तो liver का inflammation होगा और cytopathic effect है, hepatocytes हैं damage. तो ऐसे वाले केस में तो there would be viral hepatitis which should be considered. So the answer to this particular question would be given as viral hepatitis. टाइफाइड क्यों नहीं है? तो टाइफाइड में प्रोड्रोमल सिम्टम्स नहीं होते ना. वायरल हेपेटाइटिस की प्रेजेंटेशन ही क्या होती है? वायरल हेपेटाइटिस में इनिशियली पेशेंट को नोजिया प्रेजेंट होता है. वो कहता है कि सिगरेट पीने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता,
मतलब लाइक नॉर्मल जो हैबिट्स होते हैं लोगों के, भाई सुबह उठ के कई लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, कह रहा मेरा किसी भी चीज़ में टेस्ट खराब हो गया है, आई डोंट फील लाइक डूइंग माई रूटीन स्टफ एंड आई फील प्यूकिश विद द स्मेल ऑफ फूड से भी बैड, आई मीन आई फील प्यूकिश, सो प्रोड्रोम प्रेजेंट है। प्रोड्रोम के बाद में फिर जब आप पढ़ोगे तो देर इज प्रेजेंस ऑफ फीवर and there is a liver tenderness that is given in the question. So if you combine the two effects and also that there is a hepatocyte damage, the diagnosis of this particular case would be viral hepatitis. टाइफाइड होता तो टाइफाइड में तो फिर स्टेपलैडर पैटर्न ऑफ फीवर भी प्रेजेंट होता है, देर इज अ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया विच इज प्रेजेंट, देर इज अ कोटेड टंग, देर कुड बी हिपैटोमेगैली दैट कैन अकर इवन विद एंटेरिक फीवर। तो पॉसिबिलिटीज तो मुझे सारी की सारी रखनी है, बट कंसिडरिंग इन दिस क्वेश्चन देर इज नो मेंशन ऑफ एनी हाई ग्रेड फीवर, इट्स अ लो ग्रेड फीवर, देर इज नो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, तो मैंने टाइफाइड को भी रूल आउट किया। और डेंगू में तो खैर यार ब्रेक बोन फीवर, देयर इज गोना बी लाइक वेरी वेरी सिवियर मसल पेन प्रेजेंट, इतना पेन होता है कि पेशेंट बोलता है कि किसी ने मेरे को ना जैसे लाठी से मारा, हड्डियां तोड़ दी मेरी। तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना है। दिस क्वेश्चन इज द आंसर इज वायरल हेपेटाइटिस, द आंसर इज नॉट लेप्टोस्पाइरोसिस, आई गिवन द रीजंस primarily, I mean no cough pain given, no conjunctival suffusion described for this question. So yeah, perfectly right. I am having little like lukewarm response, थोड़ा lethargic से होके बैठे हो, but then you have to do that commenting, है ना। नोट्स काले करने से नहीं होता ना, यहाँ पे अब अगर आपका सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तो नोट्स में ऐड करो ना इसको, बिकॉज यू नीड टू मेक योर नोट्स मोर पोटेंट। आपको रोज रोज उसमें पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। अलग से कॉपी बनाते हैं कई लोग, तो उसमें क्या होता है कि वो कॉपी इतनी मोटी हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आता। तो बेटर है कि जो आपके ओरिजिनल सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जहाँ पे भी आपने लेप्टोस्पायरोसिस पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिसिन में, जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपने पॉइंट ऐड करना है कि लेप्टो वर्सेस वायरल हेपेटाइटिस कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो आई थिंक वी सॉर्टेड फॉर द थर्ड क्वेश्चन एंड वी मूव टू द फोर्थ वन. This is a AIDS patient, CD4 count is 150, he's having sulfur drug allergy, and which opportunistic infection can occur at CD4 count less than 200? Then obviously it is pneumocystis jirovecii. I mean, one of the commonest opportunistic infections that develops at CD4 count less than 200 is pneumocystis jirovecii. For prevention of this infection, the usual drug that we used is cotrimoxazole, that is also called as trimethoprim and sulfamethoxazole. लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? टिपिकल इनिसेट वाला, उसने बोल दिया पेशेंट को सल्फर ड्रग से एलर्जी है। तो अगर किसी को सल्फर ड्रग से एलर्जी होगी तो मैं तो उसको नहीं दूंगा ना। अगर मैं उसको ये दवाई दे देता हूँ तो इसको तो इवन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। इफ यू नो somebody is having sulfur drug allergy and I give this medicine to the patient, then the bad news is he can end up with Steven Johnson, toxic epidermal necrolysis, वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मेडिको लीगल केस हो जाएगा, है ना। वैसे भी मेडिकल इंश्योरेंस आजकल देखो कितना, आई मीन आई थिंक अभी आप लोगों ने कभी सर्च नहीं किया होगा मेडिकल इंश्योरेंस का। मेडिकल इंश्योरेंस खुद की हेल्थ वाली नहीं, मेडिकल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस। तो डॉक्टर्स आर गोइंग बैलिस्टिक फॉर लाइक मेडिकल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, क्योंकि पेशेंट्स छोटी छोटी बातों पे आजकल कोर्ट केस कर देते हैं। तो देन लाइक जो मतलब टाइम वेस्ट होता है हमारा, वो तो अलग बात है, बट फिनेंशियल लॉस भी तो है। तो लाइक नाउ डेज वी आर लाइक बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम आईसीआईसी लॉम्बार्ड एंड वी पे टू आईसीआईसी लॉम्बार्ड कि भाई कल को अगर कुछ हो गया, राइट, देन आई डोंट हैव टू एटलीस्ट आउटराइटली पे मनी टू द ऑपोजिशन पार्टी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द एजेंडा, आई मीन अगर मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी थ्योरी शुड बी गुड एंड रॉक सॉलिड। आप पढ़ क्यों रहे हो? अपना करियर डेवलप करने के लिए, एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि भी गलती ना हो ना हमसे कि सल्फर ड्रग एलर्जी वाले को तो ये दवाई नहीं लिखेंगे, तो वहाँ पे हम क्या देंगे पेशेंट को? तो पेंटामेडिन से नेबुलाइजेशन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन अगर आप चेकआउट करोगे जहाँ पे मैंने बोला HIV का आप 1-1.5 घंटे का वीडियो अगर मेरा सुन लेते हो, तो आपका पैथो, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑब्वियसली जो डायग्नोस्टिक स्किल्स वाली बात होती है, वो तीनों कंबाइन हो जाती है। तो एक लाइक क्विक रिवीजन हो जाता है, बिकॉज आइसोलेटेड आप इन्फेक्शन पड़े हो, बट जब 4 एक साथ दिए होते हैं, 4 ड्रग्स एक साथ दिए होते हैं, देन कैसे एनालाइज करना है, दैट कम्स विथ थ्योरी कंपोनेंट दैट आई सेड इज द रेफरेंस वीडियो एंड ऑब्वियसली द प्रैक्टिस दैट आई एम मेकिंग यू डू एट द मोमेंट। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 is alpha, and this was another HIV based infection that I thought I should introduce. We move to the 5th one. This is relatively easier. 60-year-old male with history of, इसको नोट कर लेना, आपके नोट्स में तो दिया हुआ है, मेन नोट्स में दिया हुआ पेंटामेडिन नेबुलाइजेशन फॉर सल्फर ड्रग एलर्जी, क्योंकि ये नहीं देना है, इसको नहीं देना है क्योंकि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का रिस्क है। सो इट्स पेंटामेडिन नेबुलाइजेशन। ओके, coming to the 5th one, we have a male with history of smoking and is also a construction worker present with cough, weight loss and hemoptysis.
So considering smoking and hemoptysis, I'm a little worried. I mean, I think that this guy could be having presence of lung cancer, and construction work is also there, so that again increases the risk. No, asbestosis increases the risk of development of lung cancer in a patient. नाउ द इमेजिंग जब आप देख रहे हो तो वहां पे बड़ा सरप्राइजिंग सी बात है कि लाइक यू कैन सी मल्टीपल वाइट वाइट राउंड राउंड ओपेसिटीज. सो द एक्सरे फाइंडिंग ऑफ दिस पेशेंट इज कैनन बॉल मेट्स, which tells me that this patient is not having a primary lung cancer, but he might have got a cancer from somewhere else. और साथ में उसने पेट सीटी की रिपोर्ट भी दे रखी है. पेट सीटी की रिपोर्ट में तो ऑब्वियसली आप मल्टीपल ब्लैक स्पॉट्स देख पा रहे हो वेयर लाइक द मेटास्टेसिस ऑफ दिस कैंसर वुड बी प्रेजेंट, बट द मेन थिंग वो लंग्स में ही है. राइट, द स्प्रेड हैज अकर टू द लंग्स ओनली. सो लेट्स एनालाइज दिस क्वेश्चन. क्योंकि मेल पेशेंट है तो ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो सकता. कैनन बॉल मेट्स कैन बी सीन विद ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर क्यों नहीं? क्योंकि भाई मतलब वो तो फीमेल पेशेंट में होगा. उसके बाद में मीजोथेलियोमा. तो मीजोथेलियोमा में तो प्लूरल कैल्सिफिकेशन होती है, प्लूरल प्लाक्स प्रेजेंट होते हैं. उसमें तो मतलब देयर वुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ प्लूरल एफ्यूजन इन अ पेशेंट. तो ब्लंटिंग ऑफ द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल शुड बी अकरिंग. सो व्हाई द आंसर कैन नॉट बी डी इज बिकॉज मीजोथेलियोमा में तो प्लूरल कैल्सिफिकेशन है, प्लूरल एफ्यूजन है. यहाँ पे तो देखो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल तो हम डिलिनेट कर पा रहे हैं ना, एक दोनों साइड पे ही मैं बोलूँगा थोड़ी सी इमेज कट रही है. बट देन इफ यू लुक एट द ब्लू मार्किंग्स दैट आई डिड, you can easily identify the costophonic angles in the patient also. I'll just write it once again. Mesothelioma की presentation क्या होती है? Pleural calcification and development of hydrothorax, that is pleural effusion of the exudative variety, और वो भी unilateral होगा. तो इसका आंसर mesothelioma भी नहीं हो सकता. तो आपको सिर्फ इतना ही तो पढ़ना था. कैनन बॉल मेट्स तो आपको मैडम ने भी पढ़ाए हुए हैं ना, उसमें ब्रेस्ट कैंसर होता है और फिर उसके बाद में अगला जो आंसर रहता है कोरियोकार्सिनोमा, और उसके बाद में कोरियोकार्सिनोमा भी फीमेल में होगा, है ना. तो अगला जो पॉसिबिलिटी है वो एक ही बच गई ना, रीनल सेल कार्सिनोमा, विच इज कॉमनली सीन इन सिगरेट स्मोकर्स ऑल्सो. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर ए. व्हाट यू हैव टू पिक अप इज डिफरेंशियल्स फॉर कैनन बॉल मेट्स. कैनन बॉल मेट्स कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं हम? कोरियो कार्सिनोमा के साथ में पढ़ते हैं. देन यू रीड इट विद ब्रेस्ट कैंसर, देन यू रीड इट विद रीनल सेल कैंसर. रीनल सेल कैंसर का हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन होता है ना, राइट, द थ्रू द इंफेरियर वेना केवा द मेट्स कैन गो टू द लंग एंड इट कैन रिजल्ट इन कैनन बॉल मेट्स इन अ पर्सन. सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर ए. एक 15 सेकंड्स का रिवीजन कर लेते हैं. कैनन बॉल मेट्स के डिफरेंशियल्स तो आपको आते ही हैं, राइट. कोरियोकार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, आरसीसी. पर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? फर्स्ट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डिस्ट्रैक्शन, कि उसने स्मोकिंग दिया, हेमोप्टाइसिस दिया, कफ दिया, आपको लग रहा है प्राइमरी लंग कैंसर. पर जब आप एक्सरे देखें तो प्राइमरी लंग कैंसर नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी, मतलब मेट्स हैं, कहीं ना कहीं से आ रहे हैं. और कैसे मुझे पता चला कि ये मेट्स कहीं से आ रहे हैं? पेट सीटी की रिपोर्ट दे रखी है. पेट सीटी यू नो इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस इन अ पेशेंट. नाउ 1 सेकेंड और, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है, मीजोथेलियोमा में प्लूरल एफ्यूजन होती है, तो दो ही बचे. स्टमक कैंसर, स्टमक कैंसर तो मेटास्टाइज करके इट यूजुअली कॉजेज मैलिग्नेंट असाइटिस. It goes to the peritoneum, it causes peritoneal carcinomatosis. So what it causes is a development of malignant ascites. So the answer for this question by exclusion is option number A, that is a renal cell carcinoma. So we are sorted for the 5th one also. So cannonball Metz के differentials have been practiced. देखो कैननबॉल मेट्स का वो तो निमोनिक वोमोनिक बताते हैं, राइट, बट दैट निमोनिक की जगह पे आपको तो एप्लीकेशन करनी है ना सर इस सवाल में, कि भाई फर्स्ट लाइन डिस्ट्रैक्शन वाली हो गई, फिर सेकंड में उसने मेट्स के बारे में बताया, पेट सीटी की फोटो दे दी. सो ऑल ऑफ दोज इमेजेस हैव टू बी एनालाइज्ड. चलो अगला जो सवाल है ये तो बड़ा शॉकिंग सवाल था. ये एफएमजी के एग्जाम में आया था, और मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज जो लास्ट टाइम का आई वुड से कई क्वेश्चंस थे एफएमजी के, वो इन्हीं सेट में आए थे और इन्हीं सेट वाले एफएमजी में थे. लेट्स एनालाइज. 60-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद ब्रेथलेसनेस एंड कफ फॉर सेवरल ईयर्स, राइट. तो पहली लाइन तो बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी है. which has progressively worsened. She has a smoking history. जैसे रूरल इंडिया में तो स्मोकिंग भी करते हैं बहुत बारी, और उसके साथ साथ में घर में जो चूल्हा होता है, right, that can contribute to anthracosis and cause carbon going in the lung, that will cause COPD in a patient. So everything so far so good. लेकिन फिर उसने बोला एटोपी, एलर्जी की हिस्ट्री भी प्रेजेंट है. पल्मरी फंक्शन टेस्टिंग शोज अ पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर FEV1 FAC रेशियो ऑफ लेस देन 0.7. तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर प्रेजेंट है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नो दिस इज अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर. वो तो वैसे ही स्मोकिंग से पता चल गया ना भाई, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि सिगरेट स्मोकर होगा तो भाई ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर ही होना है. लेकिन उसके बाद में बोलता है कि 18% की इंप्रूवमेंट है
इन FEV1 आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्ट्रेशन, आपको मैंने बताया हुआ है कि एस्थमा में जो कट ऑफ होता है वो 12% से ज़्यादा का होता है, तो ये तो एस्थमा की फेवर में भी जा रहा है। एस्थमा के फेवर में इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स हैं। पहला, उसने बोला कि एलर्जी की हिस्ट्री है, एटोपी की हिस्ट्री है, चलो हमें लगा कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होगी। लेकिन सीओपीडी के केस में तो FEV1 का जो राइज होता है ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में, दैट शुड बी लेस देन 12%। यहाँ पे तो 18% दे रखा है, दैट इज मोर देन 12%। तो इस पेशेंट को एस्थमा भी है, इसको सीओपीडी भी है, दैट इज अ ओवरलैप ऑफ एस्थमा एंड सीओपीडी इज प्रेजेंट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सीरियसली डिफिकल्ट सवाल था। इवन जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं वो ये डायग्नोसिस बनाने से पहले 10 बार ही सोचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स बैठे थे एफएमजी एग्जाम के लिए, लिटरली मतलब सम गाइज वर क्राइंग, कि क्या सर ये मतलब एस्थमा पूछे, सीओपीडी पूछे, ओवरलैप सिंड्रोम पूछ लिया। बट देन करा लोगों ने, राइट, आई मीन पीपल वर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन कि एसीओ था सर, हमने एसीओ मार्क किया। मैंने कहा भाई कैसे, ये क्या रियल डायग्नोसिस बोल रहे हो क्या? फिर क्वेश्चन डिस्क्राइब हुआ, डिस्कशन में आया तो एसीओ, क्योंकि एक्सरे में भी देखो ना फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम इज प्रेजेंट, दैट इज अगेन फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव रिवर डिसऑर्डर। पूरा डायफ्राम देखो बिल्कुल फ्लैटेंड है। सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग दे रखा है तो सीओपीडी तो बनता, नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट the point is spirometry is telling a different story, that there can be an overlap in a question as well. Yeah, that is why I'm saying na बच्चे, COPD I agree is the first differential diagnosis, लेकिन COPD में रिवर्सिबिलिटी का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है that is less than 12%। फर्स्ट लाइन मैंने ये बोली है, asthma is defined as FEV1 having reversibility का criteria more than 12%, COPD is less than 12%. So this is a overlap syndrome that is occurring in this patient, that is option number C। मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनाया तो उन्होंने इन्हीं सेट के लिए डाल दिया FMG वाले सेट में, तो बच्चे परेशान हो गए थे। बट कोई बात नहीं, ठीक है यार, टेक इट ऑन द चेन, सवाल डाला है उन्होंने। ये वैसे ही है जैसे रूमैट में ओवरलैप सिंड्रोम पूछ रहा है ना इन्हीं सेट में, अभी करूंगा आगे डिस्कस उसका मैं ये, right? So similarly, like he'll talk about combination of polymyositis with scleroderma. Scleroderma miles apart है ना यार, scleroderma में तो Raynaud's phenomenon भी होता है, and like that salt and pepper skin is present, and then we read about pulmonary artery hypertension, polymyositis muscles का disease है, तो दोनों का combination दे दिया, that is scleroderma and polymyositis overlap. Similarly, this is that similar spirit of a question. So we sorted for the sixth question for today, guys. The answer is asthma COPD overlap, and let's move to the next one. Favorite again, ABG तो आने ही आना है। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, शी इज कमिंग टू द ER विद सिवियर फूड पॉइजनिंग, दिस फटीग, टमी पेन, वेरी अंडरस्टैंडेबल। भाई गोलगप्पे खा लिए होंगे बाहर, है ना, और डायबिटीज भी है तो भाई दिक्कत तो होनी है। नाउ द ABG ऑफ द पेशेंट इज शोइंग pH of 7.40, नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट इज 30, तो बाइकार्बोनेट नॉर्मल होता है 22 से 26, सो दिस टेल्स मी दैट देयर इज अ अल्कोलोसिस कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस पेशेंट, अल्कोलोसिस कंपोनेंट। मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज फूड पॉइजनिंग है, वॉमिटिंग भी हुई होगी, तो आई एम सेइंग दैट दिस गोज इन फेवर ऑफ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, क्योंकि रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस जो होता है उसमें तो हाइपर वेंटिलेशन होती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए CO2 शुड बी मोर, फॉर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस CO2 शुड बी लेसर। तो यहाँ तो CO2 की वैल्यू नॉर्मल दे रखी है, 45 तो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है ना, 35 से 45 वाली। तो पहला इंटरप्रिटेशन तो हो गया कि इसे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है। अब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में कॉम्पेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पे विंटर्स फार्मूला, जो मॉडिफाइड विंटर्स फार्मूला होता है, उसको लगाते हैं। For compensation, we will be deploying what is called as modified Winters formula. So let's apply this. Modified Winters formula क्या होता है? Expected PCO2 of the patient. आपने actual तो देख ही लिया, 45 लिखी हुई है। आपने क्या करना है, जो भी बाइकार्बोनेट की वैल्यू यहाँ दे रखी है उसमें 15 ऐड कर देना होता है। अगर आप ऐड करोगे, बाइकार्बोनेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, और इसमें अगर आप 15 ऐड करोगे तो जो एक्सपेक्टेड PCO2 है और एक्चुअल PCO2 है, दोनों मैच कर रहे हैं ना। द एक्सपेक्टेड PCO2 ऑफ दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज 45 and the actual PCO2 of this patient, I'll just use a different color to mark that. You see the actual PCO2 of this patient is also 45. So दोनों क्योंकि मैच कर रहे हैं, that means that there is a compensation process which is occurring in this case, and therefore person is having compensated metabolic alkalosis। क्योंकि जब भी metabolic alkalosis होगा किसी पेशेंट को, तो the person will try to I mean the compensation process is always opposite of the primary change, so body will try to retain carbon dioxide, and that is why in this patient PCO2 is on the higher side of normal। अनैन गैप भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
अनैन गैप के लिए फॉर्मूला होता है पॉजिटिव चार्जेस दैट इज 130, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट दैट इज 95 प्लस बाइकार्बोनेट कितना था यार 30, या मैथ्स बड़ी कमजोर है मेरी, आई रियली स्ट्रगल। 95 प्लस 30 बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स, तो 125 हो गया ना यार। 125, तो 130 माइनस 125 हो गया, तो दैट वुड बी अ वैल्यू ऑफ 5 अप्रोक्सीमेटली। यू आर अवेयर द, आई मीन नॉर्मल से भी कम ही आ रहा है राइट, इट्स कमिंग आउट टू बी अ लिटिल लेसर देन नॉर्मल। नॉर्मल जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है वो 6 टू सॉरी नॉर्मल जो अनायन गैप होता है वो 6 to 12 मिलीकुलेंट्स होता है। सो अब यहाँ लेस तो लिखा नहीं है ना, तो कई बार लैब एरर्स भी हो सकते हैं एक दो पॉइंट्स के। तो आई से दिस इज नॉर्मल अनएन गैप, वो तो चारों में दे रखा है, एंड देन देयर इज अ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। व्हाई एम आई सेइंग मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस? वेल वॉमिटिंग हो रहा था, and more importantly in this question what you can also see is that the actual PCO2 or expected PCO2 are matching। तो क्योंकि मैचिंग हो रहा है, that is why in this patient we will say that this is compensated fully compensated। वो fully word कहाँ से आया? pH नॉर्मल हो गया ना यार। फुली क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे pH नॉर्मल हो गया, एंड द रूल इज ऑल्सो, देखो मैंने पूरा जस्टिफिकेशन दिया। फुली वर्ड मैंने क्यों बोला? pH नॉर्मल है। और कॉम्पेंसेटेड वर्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड PCO2 एक्चुअल PCO2 की वैल्यू है वो मॉडिफाइड विंटर्स फार्मूला को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस ब्लाइंडली नहीं बोलना है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि डायबिटिक पेशेंट कभी भी सिक होता है तो उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क रहता है। लेकिन आपको पहले आप ये देखिए ना कि इलनेस कौन सी, there is a vomiting occurring in a guy। so even if I don't get into this complex mathematics, अगर मुझे ये 30 सेकंड में सवाल करना है तो आप बाई डिफॉल्ट याद रखिए कभी भी फूड पॉइजनिंग लिखी है तो आपको सबसे पहले वॉमिटिंग आती है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस पकड़ना चाहिए, बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा है वो पकड़ना चाहिए, उसके बाद सिंपल विंटर फार्मूला लगा दो। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब है कि देर इज अ कॉम्पेंसेशन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है ना, मान लो वैल्यू जो आती होती CO2 की वो नॉर्मल से ज्यादा आ रही होती, तो फिर हम बोलते हैं कि मिक्स्ड डिसऑर्डर है राइट। दे कैन बी अ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस एंड दे कुड बी अ मिक्स्ड डिसऑर्डर आल्सो। द बेसिक रूल इज दैट इफ द फॉर्मूला इज सेटिस्फाइड दैट मींस it's a compensatory disorder। So we are sorted for question number 7। I'll make you do some more ABG questions as well, but yeah, this is just the tip of the iceberg। The starting part is normal anion gap metabolic alkalosis is there। Let's move to the 8th one for today। This 8th one that I'm describing at the moment is an alcoholic with severe abdominal pain। There is acute pancreatitis in a patient। So pancreatitis वाला बंदा तो ICU में जाना है। तो उसका मैंने जब ABG देखा तो pH is less, PCO2 is also less, and bicarbonate is also less। So the moment you read this, you know that all the arrows are going down, down, down। That means it's a case of metabolic acidosis। अब उसने चारों में metabolic acidosis डाल दिया राइट। तो अब एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? सीधा विंटर्स फार्मूला फिर से लगाओ। मॉडिफाइड विंटर्स फार्मूला होता है बाइकार्बोनेट प्लस 15, दैट इज जो भी बाइकार्बोनेट की वैल्यू है दे रखी है यहाँ पे 10, उसको जोड़ दो तो वैल्यू निकलती है 25। अब आपने देखना है कि एक्सपेक्टेड PCO2 और एक्चुअल PCO2 क्या सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ तो वैल्यू डिफरेंट है ना, you can see that the values are not matching। expected PCO2 is less than the actual PCO2 value of this patient। that means कि यहाँ पे there is a mixed disorder present। इसका PCO2 कितना होना चाहिए था 25 फॉर्मूला से, लेकिन निकला कितना 30 आ रहा है इसका, मतलब डायफ्राम इज नॉट बीइंग एबल टू डू दैट हाइपर वेंटिलेशन। आप जानते हैं ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमेशा आपको स्मॉल ब्रीदिंग होती है, उस स्मॉल ब्रीदिंग में मरीज को क्या करना चाहिए? हाइपर वेंटिलेशन करना चाहिए। तो PCO2 को कम करके बॉडी को 25 लाना था, पर ला नहीं पाई क्योंकि डायफ्राम जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा एडिक्वेटली। हो सकता है ना हाइपोकलीमिया हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस तो होते हैं पैंक्रेटाइटिस में। सो दैट वुड बी द रीजन कि क्यों वो आदमी इनएडिक्वेट हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है। मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ, inadequate hyperventilation is the problem of this guy। इसका PCO2 बॉडी मैथमेटिक्स पे ऑपरेट करती है guys। so the PCO2 of this patient should have come down to 25। it did not come down to 25 because there is some kind of inadequate hyperventilation। probably the diaphragm is not working। overall simple भाषा में this is not a compensatory disorder। If this question simply said what is the compensation of metabolic acidosis, I would have answered it as respiratory alkalosis, but B is not the answer to this question। The reason why it is not the question is because mathematics is not being satisfied। In all questions of metabolic acidosis and alkalosis, bicarbonate में 15 जोड़ना। Check out the final result। अगर values matching होती हैं, that means it is compensation। If the values are not matching, it means compensation is not working। It is a mixed disorder। So the answer to this question is metabolic acidosis with
respiratory acidosis. The concept is that metabolic acidosis तो अब निकाल ही लिए. The only thing is because the mathematical formula is not getting satisfied and the expected PCO2 की जो value आ रही है यहाँ पे that is lesser than what is the actual. That means that there is a inadequate hyperventilation happening. तभी तो value जो है expected वाली वो हमने जो निकाली वो अचीव ही नहीं हुई ना. डायफ्राम मेहनत ही नहीं कर पा रहा था. सो देर इज अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो बच्चों कह रही होती है सर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे हो गया. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में तो PCO2 45 से ज़्यादा होती है. भाई ये रिलेटिव सेंस में है. अगर PCO2 45 से ऊपर होता है वो तो प्राइमरी चेंज में होता है ना. मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 इज ऑलवेज मोर देन 45. आई एग्री टू दैट. दैट इज व्हेन देयर इज अ रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैपनिंग. यहाँ पे वैल्यू PCO2 की कम होके आनी चाहिए थी 25 पे. आ नहीं पाई. क्यों? क्योंकि डायफ्राम ठीक से काम नहीं किया. सो बिकॉज देर इज अ इनएडिक्वेट हाइपरवेंटिलेशन. वर्ड है इनएडिक्वेट हाइपरवेंटिलेशन. दैट इज कॉजिंग सम CO2 रिटेंशन इन द बॉडी. अभी तो वैल्यू 30 है ना इसकी. दैट मीन्स देर इज अ CO2 एक्स्ट्रा इन द बॉडी. CO2 is acidic molecule, generate protons, and that's why respiratory acidosis is there. So answer to question number 8 is option number A, guys. INISET is always gonna be most of the time either mixed disorder or there's gonna be like the compensation process working in a person. मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं बेसिकली ना विद रिस्पेक्ट टू एनी ABG क्वेश्चन. सो बोथ परम्यूटेशंस आई हैव डिस्कस्ड हियर. लाइक अब मैं दोनों ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बोलता तो मज़ा नहीं आता ना यार कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ही आपने मिक्स्ड डिसऑर्डर भी बोल दिया और फिर उसके बाद कॉम्पेंसेशन भी बोल दिया. तो वो तो आपको पता ही है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉम्पेंसेशन रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होती है. सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ टिपिकल क्वेश्चन विच इज लाइक अ मिक्स्ड डिसऑर्डर and ABG analysis. There are like 2 videos, the main ones that I'm saying, or if you want to go through rapid revision, the latest one that has come up, do listen to that. I've discussed all the permutation combination. जितनी possible permutation combination हो सकती हैं मैंने सारी करी हैं. आधा पौना घंटा है सिर्फ, हार्डली 45 मिनट्स. अगर RR से करोगे, अगर मेन से करोगे तो 1.5 से 2 घंटा. बट ट्राई टू गो थ्रू दिस गाइज. दैट्स गोना इंक्रीज योर स्ट्राइक रेट्स. और जो इसको कर लेता है ना वो एवरी बाकी सारी चीजें भी कर लेता है. या सुभाषनी यू परफेक्टली राइट. वी कैन यूज दैट सुभाषनी ये वाला फॉर्मूला जो आपने लिखा ना बच्चे, इसको मैं पता क्या बोलूँगा, इसमें एक +-2 आप भूल गए अभी टाइप करना, है ना. वो ठीक है टाइपोग्राफिकल होगा. आप बच्चे जब इसको करोगे ना मैथमेटिक्स, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो दिमाग हिल जाता है यार. मतलब टाइम ही नहीं होता ना पेपर में. तो इन माय ओपिनियन लाइक इंस्टेड ऑफ दैट इज व्हाट हैरिसन से मैं बोल रहा हूँ. मैंने खुद नहीं बनाया. हैरिसन में उसने विंटर्स फार्मूला लिख के मॉडिफाइड विंटर फार्मूला लिखा हुआ है. तो जो चार्ट है ना उसका पार्ट 1 में, उसमें इज मेंशन मॉडिफाइड सिंपल एडिशन. 1 स्टेप एडिशन करना है. if वैल्यूज मैच कॉम्पेंसेशन, वैल्यू ना मैच करे मिक्स डिसऑर्डर बोल देना. But your answer is perfectly spot on, guys. Answer to 8 is alpha. Let's move to the 9th one. 35-year-old female with left-sided chest pain and breathing difficulty for last 2 weeks, and then there is a decreased breath sounds on the left side. So that tells me there must be some kind of either a collapse of the lung or there can be a effusion present. Now, since he has mentioned thoracocentesis, तो effusion की ही बात कर रहा है. And if you check out the X-ray also, you can notice blunting of the costophonic angle. You can notice this concavity. This concavity is what is called as Ellis curve. इसको हम बोलते हैं Ellis curve in a patient. That is the concavity which is present. I'll just improve the spellings. This is ELIS, Ellis curve. That is a concavity. It tells me there's a pleural effusion. Now what I need to do is that there is a milky white fluid which is present with normal glucose, elevated LDH. भाई LDH तो हमेशा जब भी बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि एक्सूडेट है. रिमेंबर लाइट्स क्राइटेरिया, उसमें तो मैंने वैल्यूज भी बताई हुई है ना आपको. LDH वैल्यूज मोर देन 0.6 वैल्यूज था एक्चुअल सीरम वैल्यूज. प्रोटीन के वैल्यू 0.5 से ज़्यादा और LDH के वैल्यू 0.6 से ज़्यादा एक्सूडेट के फेवर में जाता है. एयर ही इज़ नॉट इवन गिवन अ मैथमेटिकल वैल्यू चलेगा, बट एलिवेटेड LDH टेल्स मी दैट इट इज़ एन एक्सूडेट. और वैसे भी एक्सूडेट ही निकलना है बिकॉज एनी पेशेंट हुज हैविंग लाइक वन साइडेड एफ्यूजन, क्योंकि ट्रांसुडेट तो बायलैटरल होता है. तो बोल रहा है कि कंसिडरिंग दिस फाइंडिंग्स, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स भी दिया है. ही सेज लाइक व्हाट इज द एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो न्यूमोकोकस जो है राइट, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स का डिस्क्रिप्शन तो हम पढ़ते ही नहीं है. उसमें तो एम्पाइमा ही हो जाएगा. 2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा टाइम है यार. 2 हफ्ते से अगर न्यूमोकोकस का इन्फेक्शन होगा ना, द पर्सन विल एंड अप विद डेवलपमेंट ऑफ फ्रैंक एम्पाइमा. दे वुड बी पस प्रेजेंट. देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स. कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स कहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो रोमेटोड आर्थराइटिस एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो मैं इसके आगे प्लस माइनस लिख रहा हूँ. दिस मे बी द आंसर. मैलिग्नेंसी देख लेते हैं. 2 वीक्स में तो यार मैलिग्नेंसी कंसिडर नहीं करेंगे ना भाई. कि अगर किसी पेशेंट को मान लो फीवर भी है, चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है 2 हफ्ते से, तो मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि जी आपको कैंसर हो सकता है. तो न्यूमोकोकस एंड मैलिग्नेंसी को मैंने रूल आउट कर दिया. मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं. या तो ये ट्यूबरकुलोसिस है
या फिर ये एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रेजेंटेशन है। बट रोमेटॉइड आर्थराइटिस में तो जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, पीआईपी, एमसीपी, रिस्ट जॉइंट, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, दैट इज ओके, बट लंग्स के पहले जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी तो होनी चाहिए, यहाँ पे तो दे नहीं रखी है। गाइज यहाँ पे निकला है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप आंसर करोगे, वो है मिल्की वाइट फ्लूइड। इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं सूडो काइलोसाइटिस, क्योंकि नॉर्मली जो प्लूरल एफ्यूजन होगा अगर वो येलो, अगर व्हाइट कलर का आता है, दूध जैसा आता है, तो उसे हम काइलस काइलस एफ्यूजन बोलेंगे। बट ये हो गया सूडो काइलस एफ्यूजन, सॉरी असाइटिस वर्ड मैंने बोला, असाइटिस नहीं है ऑब्वियसली, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल एफ्यूजन। सो दिस इज अ सूडो काइलस एफ्यूजन वेयर, लाइक सूडो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है इसमें फैट है, पर फैट नहीं है। यहाँ पे एक कॉमन चीज है जो बाकी बाकी डिजीजेस को प्रेजेंट कर, मिमिक कर सकती है, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। इंडिया में देखो प्लूरल एफ्यूजन का नंबर 1 कॉज तो टीबी होता है, और टीबी में कई बार जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसपेरेंट या स्ट्रॉ कलर होने की जगह पे मिल्की वाइट हो सकता है, दूध के जैसे वाइट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सूडो काइलस एफ्यूजन विच इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच हैज टू बी आइडेंटिफाइड हेयर। कैसे आपने टीबी को पकड़ा, दो चीजों के बेसिस पे, मिल्की, पहले तो मार्कआउट कर रहा हूं जो पॉइंट्स आपको याद रखने, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स पे फोकस नहीं करना है आपको, जो फोकस करना है दैट इज वन ऑन द ग्रॉस अपीयरेंस। फिर ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स भी मैटर करते हैं, राइट। सो मिल्की वाइट फ्लूइड इज द फर्स्ट हिंट इन दिस क्वेश्चन, ग्रॉस अपीयरेंस प्रेजेंट। ग्लूकोज नॉर्मल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लूकोज लेस होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, रोमेटॉइड प्लूरल एफ्यूजन में और मैलिग्नेंसी में। ग्लूकोज इज लेस इन मैलिग्नेंसी एंड इन ऑलवेज रोमेटॉइड प्लूरल एफ्यूजन। देन इज द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। सो इफ यू लुक एट द एनालिटिकल डेटा, मैंने ग्लूकोज को भी हाईलाइट किया है। रिमेंबर द स्टेटमेंट, आप जब सुनोगे रैपिड रिवीजन में मैंने बोला नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यूज आर लेस इन मैलिग्नेंसी, दे आर लेस इन रोमेटॉइड, क्योंकि रोमेटॉइड एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, तो द सिक्योरिटी सिस्टम को एनर्जी चाहिए, सो इट विल कंज्यूम द ग्लूकोज की वैल्यूज। सो रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्यों, उसके रीजन मैं बोलता हूँ। पहला, उसमें मिल्की वाइट फ्लूइड नहीं होता। सेकेंड, उसमें ग्लूकोज की वैल्यू लेस होती है। उसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हो सकते हैं, इतना जरूर है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल हो सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है। द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 इज डेल्टा। Mycobacterium TB will be presenting with whitish fluid. It's gonna be looking like chylus, but it's not chyle, obviously. Okay. So we are sorted for 9th one. The answer is option number delta. We come to the 10th one for today. 55-year-old guy, he has worked in a shipyard industry with shortness of breath. Okay, shipyard industry का head दे दिया उसने, and then he says the guy has worked in the shipyard. He comes with breathing difficulty and chest pain. There's dullness to percussion and decreased breath sounds on the right side. So पहले तो clinically this will turn out to be a right-sided hydrothorax. साइड मैंने डिटरमाइन कर लिया, राइट साइड पे डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स है एंड डलनेस टू परकशन। ओके जी, देन ही सेज सीटी स्कैन शोज pleural thickening and nodular masses and biopsies done to confirm the diagnosis. What is the most likely diagnosis? So I think shipyard भी दे रखा है और उसके साथ में pleural effusion भी दे रखा है, तो the answer will turn out to be asbestosis. मैंने आपको बताया था कि asbestosis में कैंसर होता है जिसका नाम होता है मीजोथेलियोमा। ये इसमें मोस्ट कॉमन कैंसर नहीं होता है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें प्लूरल थिकनिंग होती है, प्लूरल प्लाक्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों इंफॉर्मेशन दी हुई हैं जो मैंने पहले भी बोली थी। मीजोथेलियोमा इज एसोसिएटेड विद, वन इज प्लूरल प्लाक फॉर्मेशन एंड द सेकेंड थिंग इज दैट मीजोथेलियोमा इज एसोसिएटेड विद अ प्लूरल एफ्यूजन ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें तो दे रखी। वो कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर फॉर मीजोथेलियोमा, प्योर पैथोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन गाइस। द मूवमेंट यू रीड this immunohistochemical marker, you are gonna grab this opportunity. I'll just use a different color to highlight this immunohistochemical marker for asbestosis, right? Answer cannot be option number A, c-kit, that is seen for GIST, gastrointestinal stromal tumor, so is ruled out. When it comes to chromogranin in a patient, that is for pancreatic, I mean it's for like pheochromocytoma, right? I mean I can say that chromogranin is what you get with respect to a tumor which can produce excess of catecholamines, that is pheochromocytoma. So Vimentin is for sarcoma. So if I go by exclusions here, the answer to question number 10th is option number C, that is calretin. This is a tumor marker to be remembered, immunohistochemical marker, sorry, for identifying, IHC marker for identifying a mesothelioma, right? The cause is asbestosis. The tumor IHC marking that is being discussed is mesothelioma.
So do add this to your notes, guys. I mean, whenever you attempt questions, you have to keep on adding. I think this should be added to your pathology notes. Mesothelioma is a characteristic cancer that is seen with asbestosis, presents with pleural plaque formation / pleural calcification. और कहीं होती ही नहीं है, होती ही नहीं है प्लूरल कैल्सिफिकेशन, सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है। तो प्लूरल थिकनिंग पढ़ते ही ये बज़वर्ड है इस सवाल का कि प्लूरल थिकनिंग प्रेजेंट है, भाई एस्बेस्टोसिस की बात कर रहा है। एंड देन इज द ट्यूमर मार्कर फॉर IHC मार्कर फॉर mesothelioma, that is calretin. Okay ji, so we are like 20% sorted as far as the current discussion is concerned. Keep on commenting on the answers, guys. We move to the 11th one, and I think this is easier than the previous one. You can see that crazy payment pattern, though initially I thought मैं crazy payment pattern word हटा दूं, but क्योंकि क्वेश्चन में दिया रखा था तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं। I mean, you have to identify this crazy payment pattern. टाइल्स के जैसे लग रहा है ना, जैसे टाइल्स लगी होती हैं, राइट? तो crazy payment pattern. Okay. The guy has worked in a glass industry. So we are talking about silicosis in this particular case, and silicosis may you can have a crazy payment pattern present. Like the X-ray of the patient can be showing ground glass appearance, and then crazy payment would come up subsequently. Let me read the question, guys. 50-year-old man has worked in a glass manufacturing industry for previous 20 years with dyspnea, cough, and fatigue. So, I mean, occupational lung disease. There is crackles on auscultation because there's terminal damage to the alveoli. That's why these bilateral crackles could be present. CT scan shows a crazy payment pattern because there would be fibrosis also occurring in the interlobular septa. There is fibrosis in the interlobular septa that explains it. He says which of the following is the cause of this presentation. तो उसने crystals के नाम पूछ लिए। अगर आप नाम पढ़ते हो तो क्राइसोटाइल, एमोसाइट और तीसरा क्रोसिडोलाइट, ये तीनों के तीनों जो क्रिस्टल्स होते हैं ये एस्बेस्टोस के क्रिस्टल्स होते हैं। ये तीनों के तीनों जो क्रिस्टल्स हैं ये एस्बेस्टोस के क्रिस्टल्स होते हैं, क्राइसोटाइल, एमेसाटाइट, एमोसाइट और क्रोसिडोलाइट। लेकिन जो लास्ट वाला है दैट इज अ क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्स जिसका नाम है क्रिस्टोबैलाइट। तो अब इनके बीच में थोड़ा सा एरर होने की पॉसिबिलिटी है और बड़े नाम मिलते जुलते से हैं, तो आपने नाम याद रखना है क्रिस्टोबैलाइट। क्रिस्टोबैलाइट इज अ क्रिस्टल रिलेटेड टू सिलिकोसिस दैट इज क्वार्ट्स। तो सिलिकोसिस वाले पेशेंट के लंग में क्या क्या जाता है, तो क्वार्ट्स के क्रिस्टल जाते हैं, क्रिस्टोबैलाइट जाता है, और एस्बेस्टोसिस में क्या क्या जाता है, तो क्राइसोटाइल, एमोसाइटाइन, क्रोसिडोलाइट क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट। एस्बेस्टोसिस का इंसिडेंस वैसे भी इंडिया में नहीं है बिकॉज 1980 के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने रूल पास किया कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एस्बेस्टोस विल नॉट बी अलाउड टू इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो अगर 1980 से पहले किसी ने सीमेंट प्लांट में काम किया होगा तो टुडे दे कुड बी प्रेजेंटिंग विद दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्बेस्टोसिस का इंड्यूस्ड मेसोथेलियोमा, नॉट एस्बेस्टोसिस बट मेसोथेलियोमा। बट I mean, silicosis तो still सबसे commonest occupational lung disease है। It can be seen in rock blasting industry जिसमें वो डायनामाइट से rocks को blast करते हैं तो जो dust produce होती है that goes in the lungs। And then glass industry is one where again silicon dioxide would be going in the lungs। So यहाँ पे उसने crystals का नाम पूछा, quartz and cristobalite are like the names to be remembered। Answer to question number alpha is option number D। Okay जी, so we are sorted for 11th one। We move to the 12th question। 55-year-old male presents with 6-week history of cough, dyspnea, and fever and fatigue. And then there is a inspiratory rails and pulmonary function test reveals a restrictive lung pattern। तो एक तो उसने खुद ही बोल दिया कि restrictive lung pattern है। HRCT shows subpleural consolidative opacities with a ground glass appearance। पैथोलॉजी ओरिएंटेशन में जा रहा है तो इसको पूरा पैथोलॉजी से ही सॉल्व करना। देयर इज अ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस विच इज प्रेजेंट, राइट? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज दे रखा है, and then he's saying granulation tissue within the alveolar sac is present। he says what is the diagnosis। देखो ARDS तो हो नहीं सकता, 6 वीक्स की हिस्ट्री पे तो acute respiratory distress syndrome नहीं बोलेंगे ना। ARDS तो is an event that will occur within 24 to 48 hours of a lung insult, bilateral extensive infiltrates present होंगे, बर्लिन्स क्राइटेरिया को हम यूज करते हैं। सो acute respiratory distress syndrome तो ये नहीं बनता क्योंकि 6 हफ्ते की हिस्ट्री में तो ARDS नहीं होने वाला है। सो आई रूल आउट ऑप्शन नंबर डी। एटिपिकल निमोनिया, तो निमोनिया में भी 6 वीक्स की हिस्ट्री तो नहीं होगी ना, जैसे निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा या लीगेनल निमोनिया तो मैक्सिमम एक हफ्ते की हिस्ट्री लगा लोगे। एटिपिकल निमोनिया लाइक अ वॉकिंग निमोनिया की पेशेंट कंफर्टेबल होकर आएगा, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी प्रेजेंट होगी, बट उसमें भी इस टाइप का ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहीं पे यूजुअली डिस्क्राइब तो होता नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न क्योंकि उसने दिया है तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ये है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया या फिर है ये इडियोपैथिक पल्मरी फाइब्रोसिस। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो जो इडियोपैथिक पल्मरी फाइब्रोसिस होता है आपको मालूम होगा, जो हमारे पंडित जाकिर हुसैन थे
पंडित जाकिर हुसैन साहब वो तबला जो बजाते थे, ही डाइड इन न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। वो लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए न्यूयॉर्क गए थे क्योंकि उन्हें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस था। इंडियन सिंगर्स के बारे में या इंडियन आर्टिस्ट के बारे में लोग जानते भी नहीं है ना, सबको मतलब वो जस्टिन बीबर और ये सारे नाम पता होते हैं, है ना, बट पीपल डोंट नो अबाउट द रियल टैलेंट इन इंडिया। जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई न्यूयॉर्क में बिकॉज ऑफ आईपीएफ। वहाँ पे जो सीटी स्कैन की फाइंडिंग होती है वो हनी कोम्ब अपीयरेंस होता है। यहाँ पे तो जो सीटी स्कैन की फाइंडिंग दे रखी है वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, वहाँ पे हनी कोम्ब अपीयरेंस प्रेजेंट है। और फिर हिस्टोपैथोलॉजी वाला एस्पेक्ट भी है, ग्रेनुलेशन टिश्यू विद इन द एल्व्यूलर सैक। दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉप। कॉप होता है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज इज वन टॉपिक जो लोग रेसिपी में नहीं सुनते हैं। अगर आप इनिसेट एस्पिरेंट हैं तो आपने एआरडीएस के बाद में जो अगला वीडियो मेरा सुनना है ना, मेंस की बात कर रहा हूँ, वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का। वो 35 से 40 मिनट्स का वीडियो है, बट बिलीव मी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस इनिसेट में फंसते हैं, तो उसको एक बार ज़रूर सुनिएगा। बाद में आप इसलिए रैपिड रिवीजन में जाएंगे तो वहाँ तो पॉइंट्स 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 होते हैं, बट देन वो 35 से 40 मिनट्स का जो टाइम है आपका वो कम सो लीजिएगा, बट वो 35 से 40 मिनट्स का जो मेरा सजेशन है आपका, वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को ज़रूर सुनिए, क्योंकि उसमें मैंने मेडिसिन वाला पार्ट तो बोला या डायग्नोस्टिक्स वाला, बट देन आई सेड हिस्टोपैथोलॉजी कोरिलेट्स देयर आल्सो। The answer to this question is option number B, that is a cryptogenic organizing pneumonia. So we are sorted for option number B for this particular question, guys. The radiological findings are a differentiation and the histopathological findings are also a differentiation. So we sorted for the 12th one. Coming to 13th, COPD exacerbation. अगेन अ क्वेश्चन जो हमेशा आने ही आना है, क्योंकि कैजुअलिटी में इतने सारे केस आते हैं। सीओपीडी के अभी भी देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी तो थोड़ी बारिश हो गई थी तो एक्यूआई इंप्रूव हो गया था, बट टिल आई वुड से फरवरी एंड तक ना, सीओपीडी वाज स्टिल कमिंग इन हॉस्पिटल्स एक्सेसरबेशन वाले। सो 72-year man comes to the emergency department with shortness of breath and confusion, the guy is disoriented, और उसका रेस्पिरेटरी रेट 30 है, PO2 50 है, PCO2 52 है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। यू सी, जब भी टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तो उसमें तो ओनली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना, उसमें पीसीओ2 तो नॉर्मल होता है, पर दिस पर्टिकुलर गाय इज हैविंग acute exacerbation of chronic bronchitis because COPD is written, the PCO2 is more than 45, so there is a type 2 respiratory failure. He also had a peptic ulcer. Old people can have multiple comorbidities that is present. So he says कि आप क्या intervention करोगे ताकि आप इस patient को manage कर पाओ. The question is on AECB, acute exacerbation of chronic bronchitis. For all patients of AECB, we should be giving हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन। आते ही देखा होगा आपने एफकॉर्लिन का जो एक्शन होता है 100 मिलीग्राम, वो आप सीधा नर्स को बोलते हो। इनफैक्ट पेशेंट्स इतने यूज टू हो जाते हैं कि वो कैजुअलिटी में आगे ना नर्स को बोलता है वो इंजेक्शन लगा दो 100 मिलीग्राम वाला, है ना, दैट इज एफकॉर्लिन, हाइड्रोकोर्टिसोन का शॉट। तो हाइड्रोकोर्टिसोन की शॉट के बाद में नेक्स्ट क्या करना होता है, तो यू विल आस्क योर नर्स टू गेट इन बाईपैप का मशीन, और बाईपैप की मशीन से आप इस पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देंगे टाइट फिटिंग फेस मास्क से, जिससे सैचुरेशन इंप्रूव होती है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दोज पेशेंट्स जो कि अनकॉन्शियस होते हैं या अनरिस्पॉन्सिव होते हैं। दिस क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग योर कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यहाँ पर आंसर नहीं है। वो क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट है वो डिसोरिएंटेड है। अनकॉन्शियस पेशेंट में, डिसोरिएंटेड पेशेंट में एनआईवी नहीं लगाते हैं, बिकॉज इफ दे आर गोना लाइक वॉमिट और एस्पिरेट, देन दे इफ दे वॉमिट द टाइट फिटिंग मास्क की जैसे एस्पिरेशन रिस्क मोर हो जाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली द गाय हैड अ जीआई ब्लीडिंग ऑल्सो। जब आप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ते हो तो उसमें मैंने जो मेन पॉइंट्स बोले हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एनी पेशेंट विद हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। यहाँ तो कोई हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है। This is contraindicated in unconscious patients क्योंकि risk of aspiration is there. Then the third contraindication is GI bleeding की अगर history present है, खासकर जैसे यहाँ पे peptic ulcer की history दे रखी है, तो then I would not like to take a risk because if he bleeds again from the peptic ulcer, he can end up with aspiration of blood as well. So contraindication to non-invasive ventilation is what is being tested in this question. In any patient of chronic bronchitis, if you plan to put an NIV, before you do that, check his sensorium level. Never put NIV in an unconscious patient. The correct answer for this particular question is option number D. I will have to unfortunately intubate this patient and
मैनेज विद मैकेनिकल वेंटिलेशन. नॉर्मली तो हम अवॉइड करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन करना बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ बायोट्रॉमा, रिस्क ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. सो नॉर्मली वी वांट टू अवॉइड इंट्यूबेटिंग पेशेंट्स बिकॉज वी नो कि रिस्क ऑफ वीएपी इज वेरी मच देयर. बट अब यहाँ तो यार ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास में. मैं नहीं अगर करूंगा तो द पर्सन विल डाई, ही विल गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि ऑक्सीजन देखो सिर्फ 58 है, हाइपोक्सिया में जा रहा है. PO2 लेस देन 60 is severe hypoxia, and PCO2 more than 45, I mean the guy is having carbon dioxide narcosis. So carbon dioxide narcosis में जाने से पहले non invasive ventilation should be started. This question is again a trick question in a sense that पढ़ के लगता है कि यार एक्यूट एक्सर्बेशन और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो आंसर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन होगा. बट नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज नॉट टू बी डन इन दोज केसेस जहां पे ब्लड प्रेशर क्रैश हो रहा होता है. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर डी. अगेन अ टिपिकल इनीसेट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे हमें जो लग रहा होता है आंसर वो उसका ऑपोजिट निकलाता है. सो इसमें आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी मैं देख रहा था तो जो आंसर्स थे वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर तो सबने पकड़ लिया था. इट वॉज बिटवीन NIV एंड IPPV ओनली. सो अगर यहाँ पे पेशेंट कॉन्शियस होता, ओरिएंटेड होता, एटलीस्ट बात कर रहा होता तो मैं उसको आंसर करता ऑप्शन बी. बट कंसिडरिंग द डिसओरिएंटेशन पार्ट एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली द हिस्ट्री ऑफ GI bleed also, it's a little risky to go ahead with like NIV, and we'll manage the patient with positive pressure ventilation. So 13 is delta. 45-year-old man COPD को भाई मेन वीडियो से सुन लेना. That will definitely increase your capability. रेस्पी में और कुछ सुनो या ना सुनो, ABG का वीडियो और COPD का वीडियो, दैट इज लाइक ऑलवेज टू बी रेड. और फिर तीसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो एक्चुअली कवर हो जाता है आपका पीडियाट्रिक्स वाले भी बताते हैं, पैथो वाले भी बताते हैं. इनफैक्ट पीडियाट्रिक्स से सुनना उसको, नॉट फ्रॉम पैथोलॉजी, क्योंकि पैथो में तो यार वो क्लासिकल इश्यूज है ना, सूडोमोनास तुम बता ही दोगे है ना, वो पूछ लेगा बर्कोल्डेरिया सिपेसिया. सो लिसन फ्रॉम पीडियाट्रिक्स फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेरे सजेशन से. एंड या ये जो इतने हिंट्स दे रहा हूँ ना टॉपिक्स वाले, इनको जरूर अमल करना. ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस बिकॉज अगर आप टाइम लगा के सुन रहे हो यहाँ पे तो ट्राई टू लाइक पुट दोस पॉइंटर्स बिकॉज टाइम टेस्टेड है भाई. they are the ones which have been tested. Okay जी. We have a patient with COPD with shortness of breath, cough and increased sputum production. So again exacerbation of COPD. There is a hypoxia and is कैलकुलेटेड आर्टिकुलर ग्रेडियंट इज नॉर्मल. नॉर्मल जो एल्वेलर आर्टिकुलर ग्रेडियंट होता है वो 5 to 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है. एल्वेलर आर्टिकुलर ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो करने का तरीका मतलब क्या होता है इसका, तो सिंपली है कि जैसे ये मान लो एल्वेलाई है और एल्वेलाई के आसपास में ब्लड वेसल्स होती हैं है ना. तो जो कैपिटल A मैंने लिखा दैट इज फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई जो कि 100 के आसपास होगा. एंड देन गैस जो होगी वो ऐसे डिफ्यूज करके एल्वेलाई में जाएगी तो देयर वुड बी सम प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल इन द, जो ब्लैक से दिखाई है वो ब्लड वेसल है. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एरिया इन द एल्वेलाई and the pressure of the gas in the blood vessel surrounding the alveoli is a difference of 5 to 15 millimeters of mercury. अब इसमें नॉर्मल क्यों आया, तो मैं उसका रीजन बोलता हूँ कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं COPD के, जब एक्सेसरबेशन होती है तो साइलेंट चेस्ट हो जाते हैं. साइलेंट चेस्ट से क्या होगा कि पेशेंट का जो कैपिटल A की वैल्यू है, हवा अंदर ही नहीं जा पाएगी ना. What will happen in acute exacerbation of COPD is that there is a very severe bronchospasm, there is like a lot of sputum production, so it will tend to close the airways. तो अगर एयर अंदर ही नहीं जाएगी तो कैपिटल A भी कम हो जाएगा, और अगर एल्वेलाई में हवा नहीं होगी तो ये छोटे वाला जो A है इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी. अगर दोनों कम हो जाए इक्वल वैल्यू से तो अल्टीमेटली द प्रेशर डिफरेंस विल रिमेन नॉर्मल ओनली. फिर से बोलता हूँ, आप इमेजिन करो COPD के पेशेंट को साइलेंट चेस्ट हो गया, देयर इज एक्सेसिव स्पूटम इन द चेस्ट व्हिच इज क्लोजिंग द एयरवेज, देयर इज लॉट ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशंस व्हिच आर occluding the airways. Due to occlusion, oxygen cannot go inside. If gas will not go inside, then capital A की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी. अगर एल्वेलाई में गैस कम जाएगी तो ब्लड वेसल्स में भी कम पहुंचेगी. भाई डिफ्यूजन ही तो होना है ना, अगर हवा अंदर जाएगी ही नहीं तो ब्लड वेसल में भी कम हो जाएगी. अब मैथमेटिक्स पे आ जाओ, अब फॉरगेट MBBS. दैट इज कि मान लो कैपिटल A भी कम हो गया, छोटे वाला A भी कम हो गया, दोनों बराबर कम हो गए तो मैथमेटिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है. दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में नॉर्मल एल्वुलर आर्टिकुलर ग्रेडियंट बताया हुआ है. इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं. द रीजन फॉर दिस नॉर्मल ग्रेडियंट इज हाइपोवेंटिलेशन. वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच नहीं. अगर मैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की बात करूं तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच में तो एल्वुलर आर्टिकुलर ग्रेडियंट बढ़ जाता है. वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच कॉजेज इंक्रीज इन ग्रेडियंट, क्योंकि उसमें कैपिटल A तो नॉर्मल रहेगा. मान लो किसी को पल्मरी एम्बोलिज्म हो गया, परफ्यूजन डिफेक्ट होगा ना,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ परफ्यूजन डिफेक्ट, तो उसमें क्या होगा कि जो स्मॉल ए वाली वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब मैथमेटिकली देखो कैपिटल ए तो गैस उतनी जा रही है, पर स्मॉल ए वाली वैल्यू अगर मैं कम कर दूं तो ओवरऑल जो मैथमेटिकल ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो जाता है। फाइनल लर्निंग पॉइंट क्या आपके लिए, इतना टाइम दिमाग मतलब एग्जाम में इतना तो नहीं सोच सकते, तो कैसे 30 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। तो आपको याद करना है कि जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर के एग्जांपल्स होते हैं उन सब में एल्वेलर आर्टिकुलर ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है। लेकिन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में एल्वेलर आर्टिकुलर ग्रेडियंट की वैल्यू हमेशा नॉर्मल होती है। इस पे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, सर ऐसे कैसे, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो भाई मैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कंसिडर ही नहीं कर रहा है यार, मैं तो सिर्फ ऑक्सीजन की वैल्यू बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन की मात्रा एल्वेलाई में कम हो गई। अगर एल्वेलाई में कम हो जाएगी तो जो ब्लड वेसल्स अराउंड द एल्वेलाई उनमें भी कम हो जाएगी, और दोनों में कम हो जाएगी तो वैल्यू नॉर्मल है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं दे ऑल हैव प्रेजेंस ऑफ हाइपोवेंटिलेशन। तो अगर गैस अंदर जाएगी नहीं, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों दोनों कम होंगे, दैट कॉजेज दिस ग्रेडियंट टू बी नॉर्मल। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। कार्डिक आउटपुट कम होने का तो कोई मतलब नहीं था ना, रिड्यूस कार्डिक आउटपुट तो बाहर ही हो गया। लो इंस्पायर्ड FiO2, राइट, तो अभी तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड द डिसऑर्डर, राइट, तो इट्स नॉट अबाउट द इंटरवेंशन दैट यू आर डूइंग कि भाई आपने FiO2 कम दिया इसलिए पेशेंट डिटेरिएट कर गया। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, देयर इज अ साइलेंट चेस्ट, देयर इज क्लोजर ऑफ द एयरवेज, देयर इज पुरुलेंट सिक्रीशंस, देयर इज अ पुरुलेंट ब्रोंकोरिया जो कि एल्वेलाई को ब्लॉक कर रहा है, तो गैस अंदर ही नहीं जा पा रही, जिसकी जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर बराबर कम हो जाते हैं। आई होप दैट मेक सेंस गाइस, डू रिमेंबर दिस फैक्ट। अगर वो बोलता है एस्थमा में व्हाट विल हैपन टू एल्वेलर आर्टिकुलर ग्रेडियंट, तो बोलना इंक्रीज। अगर बोलता है एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, तो आपका आंसर होगा नॉर्मल। फिर से बोल रहा हूं, अगर वो बोलता है एक्यूट एस्थमा तो बोलना इंक्रीज। अगर वो बोलता है स्टेटस एस्थमेटिकस फिर मत बोल देना टाइप 1 फेलियर। स्टेटस एस्थमेटिकस में तो साइलेंट चेस्ट होती है ना। हाइपोवेंटिलेशन के दो एग्जांपल्स हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग बेसिस पे याद रखने हैं। लाइफ लॉन्ग बोल रहा हूँ कि भाई किसी भी चीज के डॉक्टर बनोगे ऐसे पेशेंट अस्पताल में आते ही आते हैं। एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड स्टेटस एस्थमेटिकस, बोथ ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ हाइपोवेंटिलेशन। जी हाँ, आदमी तेज तेज सांस ले रहा है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा ना, तेज तेज सांस लेने के बावजूद भी हाइपोवेंटिलेशन बोल रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को। एक्यूट एक्सेसिव chronic bronchitis guy is hyperventilating ना, status asthmaticus the guy is hyperventilating ना, still I am saying that the person is having, still in spite of that I am saying that the person is having hypoventilation क्योंकि ineffective ventilation है ना, एयरवेज तो बंद हो गए। इन एस्थमा इट इज ब्रोंकोस्पैज्म, इन एक्यूट एक्सेसरबेशन chronic bronchitis it is purulent bronchoria, but that explains the hypoventilation part present here। and hypoventilation से कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों बराबर बराबर कम होते हैं, तो नॉर्मल एल्वेलर आर्टिरियल ग्रेडियंट इज प्रेजेंट इन ऑल एग्जांपल्स ऑफ टाइप 2 फेलियर। ओके जी, moving ahead to 15th one, this is much more easier, थोड़ा integrated with pathology। The question says we are having this 35-year-old woman with enlarged cervical lymph nodes on the left side, okay, with matted consistency। matted word बड़ा क्लासिकल सा है, तो कैंसर में तो रबरी कंसिस्टेंसी के होते हैं या स्टोनी कंसिस्टेंसी होती है ना। कैंसर के लिम्फ नोड जो होते हैं पत्थर जितने हार्ड होते हैं। लिम्फोमा वाले जो होते हैं वो रबर बॉल के जैसे होते हैं, दबाओगे दब जाएंगे फिर रिलीज हो जाएगा। पर मैटेड मतलब आपस में चिपके हुए होते हैं। मैटेड बेसिकली मीन्स द लिम्फ नोड्स आर स्टक टू ईच अदर। द एक्सरे इन द एक्सिशन लिम्फ नोड बायोप्सी इज शोन, तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, क्लासिकल से सेल आपको दिख ही रहे हैं ना। दैट वुड बी, आई मीन लैंगेंस टाइप ऑफ जाइंट सेल कैन बी सीन विद मल्टीपल लाइक न्यूक्लियाई arranged in a horseshoe appearance is present। पूरा जैसे horseshoe appearance होता है वैसे ही there is this giant cell that can be noticed। एंड एक्सरे देखें तो एक्सरे में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं है, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस में बहुत बारी like if it's extra pulmonary TB the chest x-ray can be normal as well, so there might be a focus, may not be visible on an x-ray, but cervical lymphadenopathy is showing presence of giant cells। so the answer to this question would be C, that is tubercular lymphadenitis। so you'll get mixed bag of questions। कई तो इतने सिंपल होते हैं कि यार आपको सोचना ही नहीं पड़ता है कि यार अरे TB पूछ लिया यार, TB lymphadenitis, but then there would be some where you'll have to do mathematical calculations, some which are ABG based, but yes I had good answer there for 15th one।